Hello. So, last lecture we studied the concept of bills of exchange to the part called as honoring and dishonoring of the bill. वो part तक study करके we concluded the lecture yesterday. So today I'm going to discuss the concept called as renewal of bill. The concept called as renewal of bill we are going to study. See, dear friends, I need to tell you that when we are describing renewal of bill, I should tell you that renewal is a process in which old bill gets cancelled, and in place of old bill, the drawer issues a new bill. In case of old, in place of old bill, the drawer will issue old bill, a new bill. That is called renewal. अभी renewal के हमेशा there are 4 stages. There are 4 stages. देखो रिन्यूअल के अंदर क्या हो रहा है, तो इन प्लेस ऑफ ओल्ड बिल न्यू बिल इज इशूड. तो सबसे पहला स्टेज इसके अंदर रहेगा कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल. सबसे पहला स्टेज रहेगा कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल. ये जो है मैं इधर स्टार मार्क करता हूं, मतलब ये केस हमेशा रहेगा. जो स्टार मार्क किया है वो कंपलसरी केस है. दूसरा होगा पार्ट पेमेंट. देखो पार्ट पेमेंट के पार्ट पे मैंने आपको कोई भी स्टार मार्क नहीं किया है, मतलब इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉई. 95% केसेस में फाल्गुनी मैडम मेरा ईमेल वहां पे ओपन करो ना, हॉटमेल वाला ओपन करो. 95% cases में the drawer is going to ask the drawee to make part payment, but sometimes the drawer can understand the condition of the drawee and may grant him concession that no part payment can be made. RAHUL underscore PHATHAGAR at hotmail.com. hotmail डालना उसमें, गूगल के जैसा नहीं है. D D capital @ 401203. नो, उसमें ना जिगर पटेल का जिगर करके एक मेल आया रहेगा कल. आया है टेस्टिमोनियल. क्या है? नहीं उसके ऊपर कभी का. जस्ट होल्ड ऑन. टेस्टिमोनियल કયું બોલું છે જૂનું મોકલ્યું
व्हाट्सएप पर ओके हाँ ओके ये लाइन उसमें इस पे जरा 2 पेज पे प्रिंट निकाल मेरा है हाँ इसको ट्रेन निकालना है ठीक। फिर आगे भी तो होगा ये उसको थोड़ा एडजस्ट करें पहले ब्लैंक पेज पे प्रिंट so part payment may not be part payment may not be done always but in majority of the cases part payment is done and इसका तीसरा पार्ट रहेगा does anybody remember what would be the third part the third part would be interest ये हमेशा रहेगा अगेन स्टार मार्क कंपल्सरी कंडीशन है वो interest would be charged because the bill is delayed by some more period it would be delayed by some more period so definitely उस पे interest charge होगा and fourth case would be issue of new bill the fourth case would be issue of new bill remember अभी यहाँ पे ये जो केस है पार्ट पेमेंट एंड इंटरेस्ट उसको मैं रेड कलर के एरोज से कुछ बताया है व्हाट डज दैट इंडिकेट एनीबडी shift this red colored circle is indicating shift that means the sequence may change there can be they can interchange themselves matlab sometimes interest will be calculated first and then part payment would be made or sometimes part payment would be made first and then interest would be charged ये important है ये कब तो you have to be very particular about the question that question के अंदर वो लोग बताएंगे क्वेश्चन के अंदर बताएंगे वो लोग कि पार्ट पेमेंट इज मेड विथ इंटरेस्ट और नॉट एंटर मारो मैडम पहले वर्ड में ओपन करो उसको मेल पे ओपन मत करो डाउनलोड करके वर्ड में ओपन करो अगर पार्ट पेमेंट इंटरेस्ट के साथ में किया है पार्ट पेमेंट इंटरेस्ट के साथ किया है तो interest would be charged first and then part payment will be made and अगर न्यू बिल इंटरेस्ट के साथ एक्सेप्ट किया है न्यू बिल इंटरेस्ट के साथ एक्सेप्ट किया है तो पार्ट पेमेंट पहले होगा इंटरेस्ट बाद में कैलकुलेट होगा और नया बिल इंटरेस्ट के साथ में रहेगा नया बिल इंटरेस्ट के साथ रहेगा समझा मेरे को इधर से तो देखो इधर ना
later it. थोड़े और एंटर मार दो, है ना, 4-5 एंटर. So this is the process of renewal. This is the process of renewal. अभी और एक केस हो सकता है बिल के साथ में, that is called retirement of bill. और एक केस होगा that is called retirement of bill. Now, what is retirement of bill? I can say retirement of bill is a process of repayment of bill before the due date. It is the process of repayment of bill before the due date. उसमें कुछ नीचे चला गया है. Repayment of the bill before the due date. तो रिन्यूअल का जर्नल एंट्रीज में आपको बताऊंगा. रिटायरमेंट ऑफ बिल के अंदर देखो, यूजुअली रिटायरमेंट इज डन ओनली ऑफ द बिल विच इज, ये इधर डालू, यूजुअली रिटायरमेंट कौन से बिल का होता है? रिटायरमेंट ऑफ बिल होता है जो बिल रिटेन हुआ रहता है ना, यूजुअली उसका ही रिटायरमेंट होता है. अब देखना, डिस्काउंटेड बिल या बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये ऐसे सारे बिल्स का रिटायरमेंट नहीं होता है. जनरली जो पर्सन ड्रॉवर ने अपने पास रिटेन करके रखा है वही बिल रिटायर होता है. तो इसका जर्नल एंट्री आपको आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, रिबेट अकाउंट डेबिटेड. देखो, कोई पर्सन आपको बिल के ड्यू डेट के पहले पैसा दे रहा है तो आप उसको कुछ डिस्काउंट देने वाले हो, आप उसको कुछ डिस्काउंट देने वाले हो. तो वो जो डिस्काउंट आप दोगे इज कॉल्ड रिबेट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. और रिबेट कितना रहेगा, कितना परसेंटेज रहेगा, ये सारा चीज आपको वो लोग क्वेश्चन के अंदर बताएंगे. सो दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल. अभी रिन्यूअल के अंदर, रिन्यूअल की जर्नल एंट्रीज में बताता हूं. पहला केस, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल. ये कंपल्सरी केस है, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल. तो द जर्नल एंट्री फॉर दैट कैन बी drawings account debited to bills receivable to bank to endorsee to
बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये चारों में से कोई भी एक केस रहेगा। जिस ढंग से हमने अपने बिल का ट्रीटमेंट किया है वैसा रहेगा, वैसा रहेगा। अगर आपने रिटेन किया है तो एंट्री रहेगा ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल, अगर एंडोर्स किया रहेगा तो ड्रॉई टू एंडोर्स ही अकाउंट। मैंने कंबाइंड एंट्री पास किया है। इज दैट ओके? और डू यू वांट मी टू राइट सेपरेट हेडिंग एंड शो सेपरेट एंट्रीज? ओके, तो कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। बाद में पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। ड्रॉई के पास से हमको पार्ट पेमेंट मिला तो एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉईज अकाउंट। तीसरा केस इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री अपने पास आएगा। हम चार्ज कर रहे तो अपने लिए इनकम है, तो एंट्री वुड बी ड्रॉईज अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉईज अकाउंट डेबिटेड टू interest account. And last part, new bill drawn and accepted by drawee. हमने नया बिल ड्रॉ किया और ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया। एंट्री वुड बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉईज अकाउंट। Bills receivable account debited to drawings account. Is that status of renewal clear to all of you? Now we discuss is a concept called as insolvency of drawee. इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई के दो स्टेप्स होते हैं। पहला क्या स्टेप रहेगा बताओ? What would be the first step? Cancel the old bill. और दूसरा फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड। फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड। तो कैंसलेशन का एंट्री तो ये सेम रहेगा। आई एम नॉट राइटिंग दैट अगेन। ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल टू बैंक टू एंडोर्सी टू बैंक फॉर कलेक्शन। कैंसलेशन का हमने देख लिया। फाइनल डिविडेंड
मिला तो एंट्री रहेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी इसमें और एक पार्ट रहेगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइज अकाउंट। जितना फाइनल डिविडेंड मिला वो कैश बैंक में जाएगा, जितना नहीं मिला वो बैड डेट्स में जाएगा एंड टोटल अमाउंट ड्रॉई का रहेगा। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। फिर we will discuss the journal entries in the books of drawing. आज पहले एक प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देते ड्रॉवर के बुक में। नोट वन क्वेश्चन। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Note one question. Rao purchased goods worth rupees 3,000 from Krishna. Rao purchased goods worth rupees 3,000 from Krishna on 1st October 2001. He pays rupees 1,000 immediately in cash and sends his acceptance for 3 months. Sends his acceptance for 3 months to Krishna for the balance payable. For the balance payable. Krishna gets this bill discounted. Krishna gets this bill discounted at 16% per annum. Two days before the due date, 2 days before the due date, Rao approached Krishna for renewal of the bill and requested Krishna to accept rupees 500 in cash
and for the balance he should draw a bill for 2 months at 18% per annum. On the maturity of the new bill, Rao was declared insolvent and 50 paise in a rupee was received as final dividend. Past journal entries in the books of Krishna. Okay. So let us go ahead towards passing the entry. मैं लिखने वाला नहीं हूं, मैं डिस्कस करूंगा एक एक एंट्री और आप लिखते जाओगे. प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ जर्नल फास्ट. जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, फिर मैं डिस्कशन चालू करता हूं. Okay. I hope the format is ready with you. पहला, Rao purchased goods worth rupees 1,000 from Krishna. Sorry, 3,000 from Krishna on 1st October 2001. तो कृष्ण राव ने परचेज किया तो कृष्णा ने सेल किया एंड उसने 1,000 इमीडिएट पेमेंट किया है, राइट? तो इट इज कैश सेल एंड क्रेडिट सेल का एंट्री हम पास करेंगे. या तो आप यहाँ पे दो अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो या एक ही एंट्री पास कर सकते हो. एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिटेड, राउज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. या एक एंट्री पास कर सकते हो राव टू सेल्स और दूसरा इमीडिएट डेट पे एंट्री पास करोगे कैश टू राव. बट द सेकेंड treatment is slightly absurd. First treatment is better. Cash account debited 1,000, Rao's account debited 2,000 to sales account say 3,000. Is that okay? Now, second part. Same day पे bill drawn and accepted है.
तो जर्नल एंट्री सेकंड क्या आएगा बताओ मुझको। उसने एक्सेप्टेंस दे दिया है, मतलब बिल ड्रॉ हुआ है। एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू राउस अकाउंट 2000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू राउस अकाउंट 2000। Being bill drawn and accepted for 3 months. Krishna got this bill discounted. तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल का अमाउंट 2000 है, डिस्काउंटिंग रेट 16% है, बिल 3 मंथ्स का था। तो इंटरेस्ट डिस्काउंट का अमाउंट 80 रुपीज आया, आपको मिला। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 1920, डिस्काउंट डेबिटेड 80, टू बिल्स रिसीवेबल 2000। Being bill discounted with the bank at 16% per annum. अभी 2 days before the due date। अरे डिस्काउंटिंग 3 महीने के बाद क्यों होगा रे? डिस्काउंटिंग 3 महीने के बाद क्यों होगा? बिल ही 3 महीने का है, तो 3 महीने के बाद उसको डिस्काउंट क्यों करेंगे? अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का डेट आएगा ना। पहले मैंने बोला भी कि ड्यू डेट कैलकुलेट करो। देखो डेट था अपना 1 अक्टूबर 2001 plus 3 months, that is 1 Jan 2002, sorry। मगर क्या बोला? 2 days before the due date, very specifically they have said। तो इसमें +3 days ऐड किए ग्रेस के, तो अपना ड्यू डेट हो गया 4 Jan 2002। मगर उसके 2 दिन पहले मतलब 2 Jan 2002 will be the date of next transaction. Is that okay? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का डेट समझा सबको? ओके तो 2 Jan 2002 रिन्यूअल का रिक्वेस्ट हुआ है। रिन्यूअल के रिक्वेस्ट पे हम बिल को कैंसिल करेंगे पहले। हम बिल को कैंसिल करेंगे पहले। तो जब बिल कैंसिल हो रहा है डिस्काउंटेड बिल कैंसल्ड, राउस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, पूरा 2000। राउ टू बैंक 2000, being old bill cancelled for renewal। अभी पार्ट पेमेंट हुआ है 500 रुपीज का। इज दैट पार्ट पेमेंट मेड विथ इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट?
चेक करो। विदाउट इंटरेस्ट, तो पहले पार्ट पेमेंट का एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, सॉरी कैश अकाउंट डेबिटेड टू राउज अकाउंट, $500। फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, राउज अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अमाउंट अपना ड्यू है 1500, उस पे 18% बोला है, इनटू न्यू बिल कितने पीरियड का था, आई गेस इट वाज फॉर 2 months। तो 2 ones are 2 6 are 6 ones are 6 threes are 15 threes are 45। Did you get the interest amount? अभी न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बैंक अकाउंट, sorry, bills receivable account debited to Rao's account. Bills receivable account debited to Rao's account, 1545। अभी आगे बोला है, on the maturity of the new bill, Rao became insolvent। तो पहले कैंसिल करो Rao to bills receivable, Rao to bills receivable 1545। फिर फाइनल डिविडेंड का एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, you write cash account only over here, cash account debited, bad debts account debited to Rao's account। फाइनल डिविडेंड कितना रहेगा 50% के हिसाब से, 50% के हिसाब से कितना रहेगा फाइनल डिविडेंड, 773 and bad debts 772। Have you got that amount? So that is one example what we have solved. Now इसी कंसेप्ट को मैं अकोमोडेशन, बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करता हूं।
एक एग्जाम्पल लिखो। On 4th April 2005, on 4th April 2005, Gupta draws a bill. Gupta draws a bill of rupees 8,000 on Jain, of rupees 8,000 on Jain at 3 months. Jain also draws a similar bill on Gupta on the same date. Both bills are duly accepted and discounted by both the parties in their respective banks at 6% per annum.